Hello everyone, I am Dr. Ritika, Manager Operations at Paras Hospital, Panchkula. So I welcome you all for today's podcast. Today we will discuss about a very interesting topic, that is epilepsy. And we have with us Dr. Parth Bansal, Consultant Neurologist at Paras Hospital, Panchkula. Thank you for coming and educating us on this interesting topic of epilepsy. Thank you so much for having me here. It is good to be here. Thank you, sir. So, sir, to start with, we would like to know what is epilepsy. So, epilepsy seizure, जिसको locally हम मिर्गी भी बोलते हैं. So, what happens is कि there is a brief episode of abrupt discharge, electrical activity discharge in the brain, which leads to abnormal body movements and which is called epilepsy or seizure. Okay, so sir, is it the same term if we call epilepsy or the seizure, or is there any difference between these two? Epilepsy means if there are two seizures which are unprovoked. अगर कोई भी दो एपिसोड ऑफ सीजर के होते हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं. या फिर एक एपिसोड हो गया सीजर का और सेकंड एपिसोड के चांसेस मोर देन 60% है इन द नेक्स्ट 10 years, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं. Okay, sir. So, what are the major causes which lead to seizures? So seizures has lots and lots of causes. So for example, the most common causes are brain stroke. So seizures have lots and lots of causes. It depends upon the age group also. Okay. बच्चों में रीजन अलग होता है, बड़ों में अलग होता है और एल्डरली एज ग्रुप में अलग होता है. यूजुअली बच्चों के अंदर जो चाइल्डहुड एपिलेप्सीज होती हैं उसमें 50% के अंदर कोई रीजन नहीं होता है. है ना. इफ देयर इज अ रीजन देन इट कुड बी brain infection, it could be brain tumor, it could be any brain insult like brain injury, old case of stroke, और कोई भी space occupying lesion brain में वो भी epilepsy या seizure कर सकता है. Okay, sir. And so what are the types of seizures? So grossly seizure के दो types होते हैं. One is focal and other one is generalized. Okay. Focal means कोई एक body part की abnormal इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे कि कोई फिंगर की एबनॉर्मल मूवमेंट है ना, सिर्फ फेस की एबनॉर्मल मूवमेंट, एक लेग की एबनॉर्मल मूवमेंट. फोकल मींस ओनली वन पार्ट ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्वड, राइट. एंड द अदर वन इज जनरलाइज सीजर, जिसमें कि आप देखेंगे जो मोस्ट कॉमनली हमें सबको पता होता है कि मिर्गी का दौरा है तो दोनों हाथों पैरों की मूवमेंट हो रही है, फेस पीला पड़ गया है ना, आंखें ऊपर चली गई हैं, मुंह से झाग आ रही है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं. यूजुअली क्या होता है, जो जनरलाइज सीजर होता है वो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि सबको पता है कि ये जनरलाइज सीजर पड़ा है. लेकिन फोकल सीजर बहुत से लोगों में मिस हो जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फोकल सीजर्स हैव अ फोकल कॉज आल्सो, सो इट इज ऑलवेज एडवाइस for a focal seizure patient to get investigated. Okay, so is it gender biased also, or it is equivalent within women and men or children? No, it is there is no gender bias in seizure. It is almost equivalent in men and women. Okay, sir. And if we find somebody is having seizure, what should be the first step? What should we do if we see somebody is having a seizure? So this is a very important and very practical question. अगर किसी भी पेशेंट को आपके सामने सीजर आ रहा है, तो यू हैव टू फॉलो अ गोल्डन रूल व्हिच इज कॉल्ड SSS. SSS. Okay, sir. So first S is stay with the patient until and unless the seizure is over. आपने पैनिक नहीं करना है, पेशेंट को छोड़ के भागना नहीं है, उसी के पास रहना है, राइट. एंड नंबर 2 इज सेफ मतलब पेशेंट के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि शार्प है, राइट. कोई स्टोन है, कोई नाइफ है, या पेशेंट के स्विमिंग पूल के पास सीजर आया है या किचन में सीजर आया है, तो पेशेंट को आपने उससे दूर ले जाना है. एंड अगर इफ पॉसिबल पेशेंट के नेक के नीचे पिलो लगाना है. ओके, ठीक है. एंड नंबर 3 इज साइड, है ना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने पेशेंट को एक साइड में करना है, राइट. इट कुड बी लेफ्ट साइड, इट कुड बी राइट साइड, बट ओनली व्हेन द सीजर इज ओवर, करेक्ट. अगर पेशेंट की मूवमेंट हो रही है उस समय आपने पेशेंट को साइड में नहीं करना है, मूवमेंट को कंप्लीट होने देना है, क्योंकि यूजुअली मैक्सिमम सीजर्स 3 से 4 मिनट के अंदर ओवर हो जाते हैं. उसके बाद आपने उस पेशेंट को साइड में करना है, एंड प्रेफरेबली लेफ्ट साइड, सो दैट जितनी भी ओरल सिक्रीशंस हैं वो पेशेंट की बाहर निकल आए, चेस्ट में ना जाए. Okay, so sir, what is the time when we should rush to the hospital and we should know that now it's a time to take the patient to the hospital, or we can just treat them at home also? No, it is very important when to decide कि पेशेंट को आपने हॉस्पिटलाइज कब करना है. There are few important indications for it. Number 1, अगर पेशेंट का सीजर 5 मिनट से ज्यादा लास्ट करता है,
एंड Okay. बाय सीजर आई मीन मूवमेंट्स, राइट. नंबर 2 इज अगर पेशेंट के बैक टू बैक 2 सीजर्स आते हैं और बीच में उसको कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं होती है, ही रिमेन्स अनकॉन्शियस, तो आपने इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है. नेक्स्ट इज अगर पेशेंट को लाइफ में फर्स्ट टाइम सीजर है तो भी आपने उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है. नेक्स्ट, इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट, एल्डरली, तो भी आपने पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना है. और अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो भी आपने पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है. Okay. So, sir, if we talk about the treatment part, Right. so what is the treatment of it, and is it totally curable, or the patient has to undergo the lifelong treatment, or there is a certain time period under which the patient can be cured completely? So first of all we'll talk about the treatment. Right. तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाना है विद हिज और हर EEG. जैसे Okay. हार्ट की ECG होती है वैसे ब्रेन की EEG होती है. वी चेक द ब्रेन वेव्स. अदर इन्वेस्टिगेशन इज MRI और CT स्कैन, Okay. है ना. वी हैव टू नो द टाइप ऑफ सीजर, फोकल सीजर है या जनरलाइज सीजर है, कोई अंडरलाइन उसका इटियोलॉजी या कॉज है कि नहीं है, EEG में क्या फाइंडिंग है, CT स्कैन या MRI में क्या फाइंडिंग है. Okay. बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन वी स्टार्ट द पेशेंट ऑन एंटी सीजर मेडिकेशंस, राइट. Okay. Is it focal, then focal medications. Is it generalized, then medication for generalized seizure. General seizure. Right. And बड़ी important बात है, according to worldwide data, 70% patients के अंदर with only one medication, just the one medication, proper medication, patient के seizures control हो जाते हैं. Okay. Right. So इसलिए proper investigation is very Is important. required. Right. Okay. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा कि क्या पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन है. 2/3 ऑफ द पेशेंट्स के अंदर सिर्फ सिंगल मेडिसिन से पेशेंट को 2 years अगर कोई सीजर नहीं आता है तो वी कैन स्लोली टेपर द डोज ऑफ द मेडिकेशन एंड स्टॉप इट. Stop also. राइट. Okay. सो 70% पेशेंट्स के अंदर सीजर की मेडिसिन अगर प्रॉपरली स्टार्ट की जाए तो वो ओवर द टाइम पीरियड मे बी 2 years, मे बी 3 years इवेंचुअली टेपर करके स्टॉप की जा सकती है. Okay. Right. So, sir, what are the chances that once it's cured or being treated correctly, that it can re-happen to same person? सो इट डिपेंड्स अपॉन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स. नंबर 1 की पेशेंट का सीजर का कॉज क्या है. नंबर 2 पेशेंट ने कितने साल तक सीजर मेडिसिन ली है. नंबर 3 पेशेंट ने कितनी सीजन मेडिसिन ली है. Right. सिंगल मेडिसिन से क्योर हुआ, 2 से 3 से 4 से कंट्रोल हुआ. अनदर पॉइंट इज पेशेंट की EEG में क्या फाइंडिंग है, MRI में क्या फाइंडिंग है. राइट. पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है. तो बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स वी डिसाइड कि पेशेंट को कितने लंबे टाइम तक मेडिकेशंस पे होना पड़ेगा. Okay, so it can also be inherited, sir. Yes, if the parents definitely. are having, so is that increasing the chances that the child would also can have the epilepsy? Yes, definitely. Okay. Genetic causes are there which Okay. increases the chances of having a seizure. Okay. And usually अगर कोई genetic cause है तो पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म एंटी सीजर मेडिकेशन पे रखते हैं. Okay. So, sir, seizure is a topic wherein we have a lot of myths in the society. Right. A few of them, like there is a saying that if somebody is having a seizure, we should immediately put something in his mouth. Is it actually a fact? Is this helpful? It is absolutely incorrect. Okay. अगर किसी पेशेंट को सीजर आ रहा है तो आपने उसके मुंह में कुछ नहीं डालना है. कुछ नहीं डालना. Okay. नो स्पून, नो फिंगर, No water. नो वाटर, नथिंग. Nothing. Okay. सी क्योंकि सीजर इतनी वॉलेंट एक्टिविटी है कि आप Right. उसके मुंह में कुछ भी डालेंगे, बी इट स्पून, बी इट योर फिंगर, इट कैन ब्रेक एंड इट कैन गो डाउन टू द लंग्स. Okay. है ना. इट कैन चोक द पेशेंट्स लंग. Right. तो दैट कैन बिकम वेरी वेरी डेंजरस. पेशेंट की जान भी जा सकती It can actually fatal it. यस should इट not कैन बी be. फेटल. तो आपने Okay. उसके मुंह में कुछ नहीं डालना है क्योंकि सीजर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली 3-4 मिनट्स में सबसाइड कर जाएगी. Okay. So the next one is that we should, when the somebody is having the bodily movement, we should hold the person tightly to restrict the movements or to maybe make him right. सो अगेन इट इज अ मिथ. वी शुड Okay. नॉट होल्ड द पेशेंट टाइटली क्योंकि वो इतनी वॉलेंट एक्टिविटी है कि पेशेंट की बोन्स ब्रेक हो सकती हैं. Right. है ना. पेशेंट कैन बी हार्म्ड. Okay. ना. यूजुअली वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट जो इनको सीजन आने के बाद शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. Okay. तो आपने पेशेंट को बिल्कुल भी टाइटली होल्ड नहीं नहीं करना है. करना. सिर्फ उसके सराउंडिंग्स को क्लीन करना है ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो. It will subside on its own. यस डेफिनेटली. Okay. Or the person, sir, with epilepsy, can she get pregnant also, or she should avoid, or maybe getting treatment first and then think about pregnancy or conceiving? See, a pregnant female with seizure is a high risk pregnancy, Okay. right? But
हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की मेडिकेशन ले रहे हैं, ओके। कितने साल से उनको सीजर है, राइट। यूजुअली वी चेक ऑल दिस मेडिकेशन, वी सी कि पेशेंट किस मेडिसिन पे कंट्रोल रह रहा है। ओके। पेशेंट को प्रेगनेंसी में हम कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करते हैं। ओके। पेशेंट कैन गेट प्रेग्नेंट डेफिनेटली, बट शी शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन विद अ टेक सर्टेन न्यूरोफिजिशियन, प्रिकॉशंस। है ना, कि कब उसको सीजर दोबारा ना आ जाए और Okay. कितनी डोज उसको प्रॉपर चल रही है। Okay. So, sir, are seizures also related to some mental illness, or we can say the patient is mentally sick if he or she is experiencing seizure in his life? Because in day-to-day life, we do hear these things also, that a patient का दिमाग कुछ खराब है या उसको mental कुछ illness है. राइट राइट। Is this also true? सो हमारी सोसाइटी में अभी भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि जिस पेशेंट को Right. सीजर है वो मेंटली इल है ना, वो इमोशनली चैलेंज्ड है। ऐसा नहीं है, दे आर एज गुड मेंटली एज वी आर, As we are. है ना। पेशेंट्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, दे कैन स्टडी, दे कैन बिकम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, Okay. दे कैन बिकम वेरी गुड इन म्यूजिक ऑल्सो, Right. ना, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। सो दे आर नॉट मेंटली और इमोशनली चैलेंज, दे आर फ्री टू डू वट एवर दे कैन, but with proper medications. With proper medication. Sir, any precautionary lines from you for the people who are actually experiencing it, not to lose hope and they can just keep up with their medication and Right. get cured? So seizure, epilepsy, mirgi is a big stigma even in 21st century. तो जिस पेशेंट को सीजर है उनको खुद ही वो इमोशनली और मेंटली डिटैच हो जाता है दुनिया से, ऐसा नहीं करना है। उनको फ्रीली ओपनली पब्लिक में एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट है। जस्ट द थिंग इज कि वो प्रॉपर मेडिकेशन अगर लेते हैं टाइम पे तो चांसेस हैं कि उनको सीजर्स दोबारा नहीं आए, और उनको सोशली हर चीज़ में एक्सेप्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं आज थ्रू योर चैनल आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज़ डू नॉट put stigma on seizure patients, right? They should be socially, economically, mentally accepted in every domain of the life. सर, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो एक एपिलेप्सी पर्सन को अवॉइड करनी है या उसे नहीं करनी चाहिए? सी ऐसा पर से तो कोई चीज़ नहीं है। Okay. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको मेडिकेशन अपनी टाइमली लेनी चाहिए। Right. एंड यस, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. एपिलेप्सी पेशेंट को टाइमली सोना चाहिए, टाइमली उठना चाहिए। Okay. राइट। हम यूजुअली देखते हैं कि बहुत लोग कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे सोते हैं ना, और फिर मॉर्निंग में भी वो टाइमली नहीं उठ पाते हैं Right. या अर्ली उठ जाते हैं। तो एपिलेप्सी पेशेंट्स के अंदर स्लीप इज़ वेरी Very इंपॉर्टेंट। important. अदरवाइज वो जो एक्टिविटी करना चाहे कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, Okay. है ना, कॉर्पोरेट लाइफ में, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। Okay. Sir, is epilepsy contagious? Contagious as mean one person to another person? To other person, No, right? no, it is not contagious. It is not. No. Okay. There's also Epilepsy- myth that if one person is staying with the person who is having epilepsy, then it can be transferable, or the other person can also have it. No, it is No, not it like is that. not. Absolutely not. Okay. And there is one more myth, sir, wherein we hear that जो old लोग हैं उनमें seizures नहीं होते हैं. Is it Okay. also true? नहीं, ओल्ड केसेस के अंदर, ओल्ड पेशेंट्स के अंदर भी सीजर्स होते हैं। होते हैं. Okay. एंड यूजुअली मैक्सिमम केसेस के अंदर उनमें कोई ना कोई सीजर का कारण मिलता है। Okay. फॉर एग्जांपल ब्रेन स्ट्रोक, हम्म. कोई ब्रेन इंजरी, Okay. कोई ट्यूमर, कोई ब्रेन इन्फेक्शन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेटाबॉलिक। सोडियम कम, कैल्शियम कम, B12 की डेफिशिएंसी, ये सब Okay. चीज़ें भी सीजर कर सकती हैं। उनसे भी सीजर हो सकते Yes. हैं. ठीक है. राइट. सो सर, जो सीजर है, कैन इट लीड टू डेथ ऑल्सो? कैन अ पर्सन डाई हु इज हैविंग अ सीजर? देयर इज अ 1% चांस ओके. इफ पेशेंट इज हैविंग सीजर, अगर वो कोई हाई रिस्क एक्टिविटी कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वो ड्राइव कर रहा है, या वो रोड पे है, या वो छत पे खड़ा हुआ है, Okay. अगर वो किचन के पास है, फायर के Yes. पास है, अगर वो स्विमिंग पूल के पास है, पानी की कोई बॉडी के पास है, अगर उस पेशेंट को तब सीजर आ जाता है तो पेशेंट patient माइट can डाई die. ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड डेटा देर इज 1% चांस कि पेशेंट माइट 1% डाई ऑल्सो। इट Okay. इज कॉल्ड SUDEP, which is sudden unexpected death in epilepsy. Yes. So it is a documented thing. Okay. Nice. Sir, any last words for our viewers on this topic of epilepsy? So epilepsy, seizure patients, and especially their caregivers, please get yourself properly checked. Start your treatment properly. Do not lose hope. Epilepsy, seizure के अंदर maximum patients के अंदर proper medication के साथ
एपिलेप्सी को या सीजर को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये भी चांसेस हैं कि आपको कुछ साल के बाद वो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। देयर शुड बी नो स्टिग्मा इन द सोसाइटी। तो उनके केयर गिवर्स और उनके आसपास रहने वाले लोग ये जाने बहुत ज़रूरी है कि एपिलेप्सी या सीजर के पेशेंट, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ। So please do not lose hope. We are there with you. Thank you so much, sir, for enlightening us on this such a crucial topic. So for all of you who are experiencing epilepsy or anyone of your family is having it, kindly please focus whatever sir has told us, that we should be clear in our mind for the 3S sir just has told us. First is that you have to stay with the patient, and second is safety. Surroundings of the patient should be clear and safe so that the patient should not harm himself or to other person. And the last is side. Correct. So we should get the person either the left side or the right side. And do not believe on any of the myths. And if you are experiencing it, kindly get yourself checked at Paras Hospital, Panchkula, and contact us. Thank you, sir.